Hello friends, welcome once again. Now in this video, understanding interpretation of TAT response video, I got a comment from a person called Arun Rao. He says, sir, if a candidate is doing cutting in the story, that is in the TAT story or the PPNDT, what does it signifies? Please make a video about the mistakes students do in writing the stories. So I will not cover the second part, that is the mistakes that people do in writing the story, but I will cover the first part about the cutting. So the topic today for this video is impact of cuttings in SSB interview. Now you understand, as a candidate, the first document that you fill is the PIQ form. So that's one place where you can do cuttings, and it has a significance because this document is studied by referred by the psychologist and the interviewing officer, and this is the first impression that they're going to have. And the second thing where possibility of cutting is there is in the psychological test, where the entire testing is based on writing TAT, WAT, SRT and SD. Even in the stage 1, the OAR and the PPNDT story you have to write. In the GTO, everything is in action oblique in speech except for the second task, which is the GP. So GP may you write the individual solution which is in writing. In the interview, nothing you give in writing other than this PIQ form. So in the psychological test and in the interview, they have the PIQ, and then the entire psychological test is writing, and in the interview there is nothing in writing, and in the GTO only the GP is the written portion. So these are the places where the cuttings can happen. But today we will not cover the cuttings in entire testing. I will limit my discussion to the cuttings in the psychological test, that is that too in the specifically in the TAT. And आपका क्वेश्चन भी इन द स्टोरी के लिए है, तो स्टोरी यू राइट इन द PPNDT and in the TAT वाला. Though, however, since it is PIQ form is the first documents, we'll just briefly touch upon that also. Now PIQ form can have in 2-page format or the 4-page format, depending upon what is the format SSB is using. Now just imagine if there are too many cuttings in this. So this is the first document that the psychologist and the interviewing officer go through before the interviewing officer calls the candidates into the interview room. He has to go through this PIQ. So imagine if your handwriting is very bad and there are too many cuttings, there are too many blanks, incomplete. All these things will create the first impression even before you get into the interviewing room. Similarly, before the psychologist starts reading your similarly, before the psychologist starts reading your TAT, WAT, SRT and SD, the first thing he reads is your PIQ. So PIQ is an important document. ये आपकी जन्म कुंडली जैसा है. So you have to avoid cutting. Not, in fact, I will not say avoid cutting. I'll say eliminate cutting, because this is something which you can always fill because you know what is it's all available. तो आई विल सजेस्ट यू कि कटिंग्स PIQ में होना ही नहीं चाहिए. और आपका रनिंग हैंड राइटिंग अगर ख़राब है तो प्लीज़ राइट इट इन कैपिटल. एनीवे यहाँ पे उन्होंने नेम इन कैपिटल लिखा है. से इफ़ योर हैंड राइटिंग इज बैड, पुट एवरीथिंग इन कैपिटल एंड टेक टाइम टू फिल इट, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन है साइकोलॉजिस्ट के पास इंटरव्यू ऑफिसर. सो आई विल सजेस्ट यू नॉट टू गेट इनटू दिस कटिंग बिजनेस. सो बेस्ट थिंग टू डू इज़ कि आप PIQ फॉर्म जो इट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन द AFOSB का टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया. प्लीज गो एंड टेक इट फ्रॉम देयर एंड फिल इट once or twice so that you know what to write and what not to write, so that you can do that easily there. अपने मार्कशीट्स को देखो, उसके अपने मार्क्स वगैरह को यहीं पे देख लो. कन्वर्शन करना है CGPA into percentage, all those things you can do that. You know, height in centimeters, height in meters, है ना, weight in kgs. Don't make guessworks and start cutting that. It will give a very very poor impression कि ये बंदा फौज में ऑफिसर बनने आया और अपना बेसिक डॉक्यूमेंट विच इज इक्वल टू बायोडाटा और द रिज्यूमे इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दैट हैज बीन very poorly filled. So there is another video by the name understanding PIQ. I'll request you to watch that AFOSB video. So उसमें भी बहुत कुछ दिया हुआ कि क्या क्या गलतियाँ करते हो. So that much for the PIQ. Now let's come back to the psychological test. And I told you कि this video will specifically limited to psychological test. और आपको पता है this candidate he's put through psychological test, GTO and the interview का जो भी CIQs है, and everything has to pass through that. And this is the mansa that is getting manifested in the 3 formats, that is karma, vacha and mansa.
And in the psychological test, we understand the psychological test, you have to express whatever you think in the form of a written expression. So आपका writing skills, power of expression, written becomes very important. And we understand psychological is a projective technique. Whatever is inside gets projected through your pen, and it is non-interactive and non-intervention. What does it mean? The psychologist does not have the liberty of coming and talking to you and seeking clarification. So it is your responsibility that you write with so much of clarity that simply by reading it, the psychologist understand what is the idea that you're wishing to communicate. So unless you are clear, he will not be clear. So there has to be inner clarity to bring external clarity. Next is, it is individual being tested in isolation. Purely your internal communication, Mansa is expressing, because there is no external interference. ना यहाँ पे psychological test में there is no fish market because nobody is interacting with each other. So it is you who are responsible for everything that you are writing. And others' presence anyway does not have any effect in this test, unlike in the GTO testing, where again it is individual being tested in context of a group. So that's different. And within these tests, we understand that TAT has got weightage of 70%. And that's a place where you have to write 12 stories. Each picture is shown for 30 seconds, and you get 4 minutes to write what led to the situation, what is currently happening, what is the final outcome, which is nothing but your problem identification, problem solving skills. So under pressure, the mind can actually get too much under pressure, and in pressure there can be a lot of cuttings which will be of meaning to the psychologist. So Arun ka jo question hai ki what is the significance of cutting in the story, so that's what we are going to take. We'll limit our discussion to TAT and cuttings in TAT. Now to give you an example, this is one response written by a service candidate. He's a ACC candidate going for the SSB for the first time. Now this was the picture that was presented. This picture becomes the stimulus and this is the response. And between the stimulus and the response, the candidate has the freedom of choice. So the freedom of choice was excised here, and this is the quality of the freedom of choice. And Arun Rao ka jo question hai ki how cuttings are evaluated. Now just imagine कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट हो और आप इसको देखते हो, तो पहली बात तो हैंड राइटिंग इटसेल्फ इज नॉट वेरी क्लियर. नाउ हैंड राइटिंग इज नॉट एनालाइज इन दी एसएसबी, बट डेफिनेटली इट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन. तो इसको देखने से एक पहले से एक आ जाता है इम्प्रेशन, यार कितना गंदा लिखा हुआ है. एंड देन यू नो पुट अ बॉक्स जिसमें कि यहाँ पे भी कुछ कटिंग किया हुआ. उसके बाद आपने यहाँ पे राहुल वॉज करके फिर काट दिया. राहुल वॉज ए डॉक्टर लिखा, DOC लिखा, उसके बाद काट दिया. उसके बाद राहुल इज अ स्टूडेंट. आफ्टर दैट स्कूल क्लोज दी समथिंग नॉट रीडेबल, बट ये पता चल रहा 2 लाइन पहले इस बंदे ने, मतलब क्लियरली ये पता चल रहा है कि ये जो भी कैंडिडेट है, ही फर्स्ट रोट दिस लाइन, राहुल वॉज ए डॉक, DOC डॉक, एंड देन इसको काट दिया. उसके बाद ही रोट दिस लाइन, राहुल इज अ स्टूडेंट. आफ्टर दैट स्कूल क्लोज, पता नहीं समझ में आ रहा, तो ये लाइन लिखा. तो क्लियरली दिस इज द फर्स्ट कटिंग, दिस इज द सेकेंड कटिंग, एंड दे आर लॉन्ग कटिंग. उसके बाद नेक्स्ट अगेन थर्ड टाइम लिखता है राहुल एंड सिस्टर इज सिबलिंग्स. तो यहाँ पे ग्रामर का मिस्टेक है. व्हेन राहुल कम्स होम आफ्टर स्कूल, इन ये क्या लिखा पता नहीं, his sister without clothes, he saw, this word is he saw. So he when Rahul comes home after school, he saw his sister without clothes and he thinks, वो सोचता है, is he thinks he is, actually he नहीं होगा, she is raped by someone, and the story ends here. So this story does not conform to the instructions given to the candidate by the psychologist, that is what led to the situation, what is currently happening, and what is the final outcome. This story is very sketchy, and isme start is with lot of cutting. So this is one cutting, this is another cutting, and then this is the actual story where he says Rahul and sister Sita
is sibling, our siblings होना चाहिए. Rahul comes home after school. He saw his sister without clothes and he think he is raped. She is raped by someone and the story ends. So this story does not have a final outcome. This story does not have what's currently happening. Simply he thinks. He is not sure. He thinks. So this story is वेरी वेरी स्केची. आपको पता चल रहा है ऊपर से 2 लाइन कटिंग है. सो ये पूरा आउटपुट जो इस कैंडिडेट ने लिखा है ये 4 मिनट में लिखा है. ही हैज टेकन 4 मिनट्स टू प्रोड्यूस दिस रेस्पॉन्स. सो बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रेस्पॉन्स in 4 minutes you have the freedom of choice. So you have to understand that this story has come from his mansa and he has used his power of expression to express, and he has to have clarity inside to bring clarity outside, because psych has to read this. So when he reads this clearly you can see it is the production, it is the creation of a confused mind. The mind which wrote this, that is this candidate who has produced this response, has a confused mind because these cuttings on the paper has happened at the external level, because at the internal level the cuttings were happened, the decision to cut happened here. कितना समझ में आ रहा? The decisions to cut these lines on the top have not happened here first. They happened as a consequence. The first decision was taken here in the Mansa, because the Mansa was confused कि राहुल was a doctor शुरू करूँ, राहुल is a student से शुरू करूँ, या राहुल and सीता is a sibling से शुरू करूँ. So पहले ना सिर्फ इसने अंदर एक डिसीजन लिया ये लिखने का, वो लिख के यहाँ काटा, फिर यहाँ से ये लिखा, फिर ये काटा, फिर थर्ड टाइम ये किया. So 1 cutting, 2 cutting, 3 cutting, and these cuttings are not one word, they are major cuttings. So these are conflicts because यहाँ पे अंदर internally evaluation नहीं हुआ, या evaluation किया partial में बाहर आया, जब implement कर दिया writing में तब उसको काटा, क्योंकि वो बाहर आ चुका था तो हमें बाहर दिख गया. अगर यही cutting आप अंदर कर देते लेकिन बाहर नहीं लिखते तो साइक को पता भी नहीं चलता. मैंने क्या बोला मुझे फीडबैक में बताना. सो दिस इज अ प्रोडक्ट, दिस इज ए क्रिएशन ऑफ ए कंफ्यूज माइंड. सो राहुल अरुण ने जो क्वेश्चन पूछा कि उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, इट विल बी इंटरप्रेटेड लाइक दिस. सो आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले पेन में नहीं हुआ, पहले माइंड में हुआ. सो माइंड का कंफ्यूजन इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड थ्रू द पेन. सो दैट्स वे इट इज इंटरप्रेटेड. सो इसका मतलब आपकी मानसा में कटिंग हुआ है. कंफ्यूजन जो है अगर उसको सिंपल सा भाषा में बोला जाए, इट इज अ सिम्टम. जो ये जो इस तरह का जो कंफ्यूजन दिख रहा है या कंफ्यूजन के कारण जो कटिंग दिख रहा है, इट इज अ सिम्टम दैट मेक्स यू फील एज इफ यू कांट थिंक क्लियरली. सो इसमें साइक को क्या पता चलता है कि बंदे के थिंकिंग में कोहेरेंसी नहीं है या क्लैरिटी नहीं है. दैट्स द वे इट विल बी परसीव्ड. सो कंफ्यूजन इज अ सिम्टम दैट द कैंडिडेट इज नॉट एबल टू थिंक क्लियरली. द कैंडिडेट माइट फील डिसओरिएंटेड and have hard time focusing on making decision. This is the way it will be interpreted. कि एक कैंडिडेट है, देखो कितना डिसीजन कॉन्फ्लिक्ट है, पहले ये लिया फिर ये लिया फिर दोनों को बदली किया फिर ये लिया, एंड उसमें भी देखो थिंक पे छोड़ दिया, एंड नहीं है. सो द कैंडिडेट इज कंफ्यूज, इज नॉट एबल टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू अंडर स्ट्रेस. और अगर आपकी 12 स्टोरियों में 6-7 ही आ जाता है, यू आर अ श्योर शॉर्ट केस फॉर और रिजेक्शन, बिकॉज 12 क्या है, ये तो ये स्टोरी इस तरह की स्टोरी आ गई तो मतलब 12 भी जरूरत नहीं, 2-3 में उड़ा देगा साइक, बिकॉज कंफ्यूज माइंड दैट इज रिस्पॉन्डिंग. सो कंफ्यूजन कैन ऑल्सो बी समटाइम रेफर्ड एज डिसओरिएंटेशन, कि आपको सही गलत का ही समझ में नहीं आ रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा क्या करना है. एंड इन एक्सट्रीम केसेस, इन एक्सट्रीम डिसऑर्डर्स के केस में इट इज कॉल्ड डिलीरियम, है ना. इट्स एन एक्सट्रीम स्टेट. एसएसबी में जो आ रहे हैं, यू आर ऑल गोइंग फॉर पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन, सो आई एम श्योर यू विल नॉट बी इन दिस कैटेगरी. बट दिस इज एन एक्सट्रीम केस जहाँ पे आपका ये कंफ्यूजन जो है आपको एक एक्सट्रीम स्टेट में ले गया, तो इट इज कॉल्ड डिलीरियम. उसके बारे में आप नेट पे देख सकते हो. अगर कंफ्यूज माइंड के कुछ इंडिकेटर्स है, आप इसे समझना और आपको भी देखना कि कहीं ये सब आपको भी हो रहा है. यू नीड टू क्लियर इट, बिकॉज योर द क्वालिटी ऑफ योर इनर वर्ल्ड इज व्हाट इज गोइंग टू गेट एक्सप्रेस इन द क्वालिटी ऑफ योर आउटर वर्ल्ड. सो इफ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू. सो कंफ्यूज माइंड का पहला इंडिकेशन है कि ए कंफ्यूज माइंड कॉन्स्टेंटली अपने
डिसीशंस को, ये अपने ऑप्शंस को अंदर बदलता रहता है। जैसे हमने पिछले स्टोरी में सर्विस एंट्री का देखा, राहुल इज अ डॉक्टर, फिर राहुल इज अ स्टूडेंट, फिर राहुल इज अ सिबलिंग सिस्टर, सीता का सिस्टर है। तो दैट्स मतलब आपके अंदर एक उथल पुथल चलता था। यू आर नॉट क्लियर, ऑप्शन 1 लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ, कभी 1 लेके इंप्लीमेंट करते, फिर वापस आके 2 करते, फिर 3 करते हो, आर्ट्स लूँ, साइंस लूँ, इंजीनियरिंग करूँ, बीए करूँ, कन्फ्यूजन हो, देयर इज नो क्लैरिटी। तो दैट अगर आपको भी होता है तो ये देखना है ना। रिलेशनशिप में भी लोग कंफ्यूज रहते हैं, मतलब आप रिलेशनशिप को स्टेबल नहीं बैठा पाते, क्योंकि आपको कभी लगता है बंदा अच्छा, कभी लगता है अच्छा नहीं है। यू आर नॉट वेरी श्योर क्या करना है। सेकंड इज कॉन्स्टेंटली यू क्वेश्चन योर सेल्फ कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, गलत तो नहीं हो जाएगा इसका, कहीं गलत तो नहीं, मतलब यू आर नॉट श्योर ऑफ योर सेल्फ, अनश्योर हो। आप अपने जो निर्णय ले रहे हो उसके ऊपर एक स्थिरता से नहीं खड़े हो पा रहे हो, बिकॉज आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं आ रहा। आप अपने ऊपर ही सवाल उठाते हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, गलत तो नहीं है, एम आई डूइंग राइट, इसका गलत तो नहीं, लोग क्या बोलेंगे। सो यू गेट अफेक्टेड बाय दैट, दैट्स another indicator of a confused mind. Overwhelmed by having too much to do. कंफ्यूज माइंड को अगर 2-3 काम एक साथ दे दो, पागल हो जाएगा। वो एक बार में एक काम को कर सकता, बाकी कुछ नहीं। सो ही कैन नॉट हैंडल मल्टीपल टास्क। सो इन अ फौजी मिलिट्री सिचुएशन, आप यू विल बी इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वेर योर माइंड हैज टू वर्क एट सो मेनी डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है जैसे पीएबीटी का टेस्ट होता है। पीएबीटी टेस्ट जो है सिविल में नहीं होता पायलट्स के लिए, बट फौज में होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लेन नहीं उड़ाना है, यहाँ पे और प्लेन उड़ाना है इन अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट सिचुएशन, जहाँ पे आपके स्पीड से ज्यादा पीछे मिसाइल आ रहा, उनका भी लुक एट विंग कमांडर अभिनंदन, F-16 का पीछा कर रहा था MiG-21 बाइसन के साथ। हु इज फास्टर? F-16, बट ही वाज देयर। सो द पैरामीटर्स टू विच यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट can be overwhelming. So PABT is simply testing your capability to respond at that वो. PABT is not happening in for pilots का। PABT को छोड़ दो, in a combat situation, for example आप surgical strike में चले गए उरी में, can you imagine वहाँ पे क्या क्या हो रहा है? So many things. So people can get overwhelmed जब उनको एक दो या टास्क दे दिया तो आपको परेशान हो जाता है। सो इफ दैट इज हैपनिंग विद यू कि आपको 2-3 काम एक साथ दे दिया, आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, इट इज द इंडिकेटर ऑफ ए कंफ्यूज माइंड, है ना। स्ट्रगल विद माइनर डिसीजन मेकिंग, छोटे छोटे डिसीजन में आपको बहुत तकलीफ होता है, समझ में नहीं आता करूँ कैसे करूँ, वो करूँ ये करूँ। छोटे छोटे डिसीजन में कॉन्स्टेंटली पता चलता है, मतलब आपको रेड शर्ट पहने या व्हाइट शर्ट पहने उसी में कंफ्यूज हो जाते हो। आज खाने में भिंडी बनाऊँ या आलू बनाऊँ, वही कंफ्यूज हो रहा है ना। कि लेक्चर के 4 टॉपिक में पहला बोलूँ, दूसरा बोलूँ या कोई भी ना बोलूँ, कंफ्यूज हो रहे हो। छोटे छोटे चीज़ों में कंफ्यूजन। अप्रूवल सीकिंग टेंडेंसी, क्योंकि खुद पे भरोसा नहीं है, कंफ्यूज माइंड है, तो हमेशा दूसरों से, पापा मैं ये कर लूँ, सही होगा ना पापा, गलती तो नहीं हो जाएगा? नहीं पापा, दोस्त ये कर लूँ यार, सुरेश तू क्या बोलता है, मेरे करने से ठीक रहेगा? सुरेश तेरे को क्या लगता है, मैं इंजीनियर करूँ या मैं बीए करूँ? सुरेश क्यों बताएगा यार, तुम्हारा डिसीजन है। तो अप्रूवल सीकिंग। एसएसबी में लड़के लड़कियां टीएटी तुम लिखते हो, हम कोचिंग वाले तुम्हारे को बताते हैं कि बेटा ये गलत करते रहे, वो गलत करता है। इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, यूर ट्रेनिंग फॉर अप्रूवल सीकिंग। यूर ए कन्फर्मिस्ट, क्योंकि मैंने बोला डेड बॉडी का ड्रामा बना दो, तुम मान लेते हो। यूर ए कन्फर्मिस्ट, मैंने तुम्हें कोर क्वालिटी हाइड करने को बोला और तुमने मान लिया। इट इंडिकेट्स ए कंफ्यूज माइंड, बिकॉज ए क्लैरिटी वाला माइंड कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि व्हेन यू हैव ए कोर क्वालिटी में वीकनेस, हाउ कैन यू हाइड इट? अगर आपकी कार में इंजन फेलियर हो गया, इंजन सीज हो गया, इट्स अ कोर क्वालिटी फेलियर, हाउ कैन यू हाइड इट? देयर आर पीपल हु राइट इट इन द बुक एंड यू एक्सेप्ट बिकॉज इट्स अ कंफ्यूज माइंड। सो कंफ्यूज माइंड को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, जो हम बनाते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, डेड बॉडी का ड्रामा। क्रॉनिकली अगर आप डिसऑर्गेनाइज हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, लेथार्जिक हो, प्रोक्रेस्टिनेटर हो, इट इज अगेन ए कंफ्यूज माइंड। इट इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। द माइंड इज नॉट एबल टू प्रायोरिटाइज एज पर दी सेंस ऑफ अर्जेंसी के बिहाफ में। इट्स ए डिसऑर्गेनाइज माइंड। अंदर पूरा, मतलब यूँ सोचो कि एक स्टोर में सारा सामान मिक्स पड़ा हुआ है और आपको कोई चीज़ निकालना कितना टाइम लगेगा। उसी जगह में अगर स्टोर को सब प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर दो तो एवरीथिंग इज इन ऑर्डर एंड यू कैन गेट वॉट एवर यू वांट इट विद द फ्लिक ऑफ ए मोमेंट। तो उसी तरह से जब आपका कमरा डिसऑर्गेनाइज है, आपका टेबल डिसऑर्गेनाइज है, आपका सारा कबोर्ड डिसऑर्गेनाइज है, आपका जूता कहीं पड़ा, चप्पल कहीं पड़ा, तो नेचुरली अगर डिसऑर्गेनाइज डिस्ट्रैक्टेड बंदे हो, आपको पता ही नहीं, साला टिकटॉक पबजी में ही लगे रहते हो। इट इज़ अ डिस्ट्रैक्टेड माइंड। डिस्ट्रैक्टेड माइंड विल ऑलवेज बी कंफ्यूज, है ना। कॉन्स्टेंटली एंशियस, ओवरवेल्म, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेटेड, कंफ्यूज, दीज आर इंडिकेटर्स। कंफ्यूज माइंड। डिपेंडिंग टू मच ऑन अदर्स फॉर योर डिसीजन, जब आप दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा
क्या बोलते हैं, डिपेंड होते हो अपने छोटे छोटे डिसीजंस के लिए. दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि योर ओन माइंड इज नॉट एबल टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन बिकॉज ऑफ विच यू आर शोइंग टू मच ऑफ ए डिपेंडेंसी ऑन अदर्स. और एसएसबी में आपको पता है कि आप कितने कोचिंग डिपेंडेंट हो. आपको लोग 10 पीजीटी 10 एचटी कराते हैं क्योंकि आपको खुद को स्ट्रक्चर एनालिसिस करने की कैपेसिटी नहीं है. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं आप भी इन टेंडेंसीज तो नहीं करोगे. अगर ऐसा होगा तो अरुण राव आपको समझ में आ गया होगा कि कंफ्यूज माइंड रिफ्लेक्ट्स दैट बिहेवियर इन कर्मा वाचा मानसा, और वो हमें दिखता है. सो आपको क्या लगता है कि एक कंफ्यूज माइंड को एसएसबी नहीं पहचान पाएगा? क्या टीएटी बदल लेने से या कोई थीम्स 60 थीम्स रट लिया उसको करने से आप अपने इस कंफ्यूज माइंड को इन 3 लोगों से 5 दिन छुपा सकते हो? यू कैन नॉट. सो देयर इज अ केस दैट यू हैव टू मूव फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी. There is a case you have to move from confusion to clarity, and this confusion आपके अंदर पहले, तो अंदर के confusion को जब बाहर निकालोगे तब बाहर अपने आप clarity आ जाएगा. A clear mind can think better. So if you can manage the world inside you, you can manage the world outside you. So जहाँ तक SSB की बात है, आपको समझ में आ होगा अरुण राव कि SSB में cuttings are evaluated. तो आपने भले ही काटा हो लेकिन दिस बिकम्स पार्ट ऑफ आवर इवैल्यूएशन. आप बोलोगे सर क्यों, ये तो मैंने काट दिया. नो नो नो, वी वांट टू सी व्हाट योर माइंड डज, मानसा. एंड ये सब आपके मानसा के अंदर हुआ है. तो ये जो कटिंग है फर्स्ट मानसा में हुआ, यहाँ पे डिसीजन हुआ और वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हुआ. सो व्हेन वी सी दिस इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट हैपेंड हियर. और इसको और अच्छे से समझना तो यूँ समझ लो कि एक बंदा अगर सुसाइड करता है और वो सुसाइड नोट लिख के छोड़ देता है और सुसाइड नोट में अगर कुछ काट दिया लिख के, तो घर में जो उसके माता पिता भाई बहन है या साइकोलॉजिस्ट है या काउंसलर है वो उसको भी पढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जो बंदे ने सुसाइड किया उसकी मानसिक अवस्था को दिखाता है. तो कटिंग्स आर इवैल्यूएटेड. और अगर कटिंग्स को आपने इस तरह से काट दिया कि वो पढ़ने में नहीं आ रहा, दैट मीन्स नॉट ओनली दैट कटिंग आपने कट किया, यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू हाइड इट. मतलब मरते टाइम भी उसको जोहरी विंडो के Q3 में डाल रहे हो. सो इट हैज मीनिंग. सो कटिंग्स आर इवैल्यूएटेड. और क्यों इसका एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आपको मैंने 2 दिन पहले एक सुमा की कहानी सुनाई थी इस पिक्चर के ऊपर, किसी लड़के की. सुमा इज a 24-year-old girl and her husband told her to have physical relationship with his boss because he wants promotion. Then after some time he की जगह she goes to her husband's boss. His boss totally, अब ये देखो ये कटिंग है. नाउ ये एक इतना क्रूशियल स्टेज में काटा. वी विल लाइक टू सी कि उसके बॉस ने पहले क्या किया, कहीं सेक्स तो नहीं कर दिया या कहीं ऐसा तो नहीं सेक्स करके आपने काट दिया. तो ये हो गया रिफ्यूज एंड समथिंग समथिंग एंड आई हैव ए डाउट ही इज नॉट ए गुड पर्सन. उसके बाद यहाँ से यहाँ तक काटा बिकॉज आई ऑल्सो रिसीव्ड सो मेनी कंप्लेंट्स फ्रॉम, किससे है नहीं लिखा. नाउ दिस इंफॉर्मेशन भले ही आपने काटा है बट दिस बिकम्स ए क्रूशियल इंफॉर्मेशन बिकॉज इट हैज कम फ्रॉम हियर. वो बात अलग है कि बिकॉज आप अपने ऊपर अनश्योर थे आपने लिख के काट दिया, बट दिस इंफॉर्मेशन इटसेल्फ इज ऑफ क्रूशियल वैल्यू. मुझे फीडबैक में बताना मैं क्या बोल रहा हूँ. इस वीडियो को दोबारा देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ पे भी दिया हुआ है. सो SSB में not necessarily you're cutting because of the previous comments that I've seen. SSB के कटिंग्स के और भी बहुत सारे कारण हो besides जो मैंने वहाँ पे बोले. पहला है कंफ्यूजन ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी. आपको पता ही नहीं है SSB में क्या होता है. किसी ने देखो आपके माइंड को कितने इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है. आपके अंदर कोई कोर क्वालिटी में वीकनेस है और देयर इज ए कोचिंग वाले सर, उन्होंने अपने बुक में लिख रहा है हाइड कोर क्वालिटी, और आपने उसे भी माइंड में ले लिया ना. आपको क्या लगता है ये माइंड उससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा. नेक्स्ट किसी ने बोला अगर डेड बॉडी का ड्रामा बना दोगे तो तुम पॉजिटिव हो जाओगे, तुमने उसको भी ले लिया. किसी ने बोलिया फट्टा इक्वल टू ब्रिगेडियर, जो उठा के भागेगा वो लीडर. किसी ने बोल दिया लोड मत उठाना. इसका मतलब है इस माइंड के अंदर इतने सारे इनपुट डाल दिए हैं. कोई बोलता है शॉर्ट टर्म स्टोरी बनाना, कोई बोलता है विजनरी स्टोरी बनाना, कोई बोलता है कि साला कोई भी मूड को हमेशा पॉजिटिव रखना, कोई बोलता है एज अपने जैसा रखना. देयर आर सो मेनी इनपुट्स दैट हैज बीन पुट इनटू इट बाय पीपल लाइक अस इन द नेम ऑफ कोचिंग कि योर माइंड इज डेफिनेटली ए कंफ्यूज माइंड. बिकॉज आपने पेट्रोल टैंक में मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालना था, आपने उसमें सरसों का तेल, नारियल का तेल, इंजन ऑयल, डीजल सब डाल दिया. तो आप बताओ आपकी गाड़ी कैसे नहीं चलेगी, कैसे चल पाएगी, नहीं चलेगी. सो SSB में
one of the reasons for even intelligent people to show confusion is because intelligent people, by the nature of training they have done, they are more confused than clarity. एसएसबी कोचिंग में जाते हैं क्लैरिटी के लिए, वो क्लैरिटी की जगह और कंफ्यूज करके छोड़ देते हैं। लो आईक्यू, अगर आपका दिमाग ही कमजोर है तो नेचुरली यू विल बी कंफ्यूज मैन, बिकॉज योर इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी इज लैकिंग, है ना। डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू स्प्रिंकल ओएलक्यू, एक बुक में लिखा हुआ किसी ने बहुत बढ़िया, अपने आप को बोलता है बेटा ओएलक्यू अगर हो या ना हो, स्प्रिंकल ओएलक्यू, ऐसा लगता है जैसे नमक स्प्रिंकल कर रहे हो। नाउ दिस इज ओनली अ कंफ्यूज माइंड कैन एक्सेप्ट सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको लगता है ये सब बेवकूफ है कि आपने स्प्रिंकल ऑयल क्यों किया और ये लोग आपको ले लेंगे। मतलब आप ये जो ट्रेनिंग कर रहे हो ना, इस ट्रेनिंग का एक बेसिस ये है कि इनको बेवकूफ़ बना सकते हैं, जबकि आपको पता है द क्लियरेंस रेट इज 3.6%। सो स्प्रिंकल ऑयल क्यों, पुअर एक्सप्रेशन, कुछ लोग तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन के मारे जाते हैं, साले इंग्लिश में लिखना पड़ता है, इंग्लिश पे काम नहीं किया तो लिखना कुछ चाहते हैं और लिख कुछ जाते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है। वो कंफ्यूजन का उसका बेसिस इंग्लिश है, बट द प्रॉब्लम इज यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, एंड व्हाई शुड वी देन टेक यू। जो आदमी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो क्या लीडरशिप करेगा। इनएडिक्वेट कॉन्शियस डेवलपमेंट, इनएडिक्वेट कॉन्शियस डेवलपमेंट का मतलब है जैसे करण हरप्रीत की स्टोरी है, वहाँ पे सेक्स लिख देते हो, लस्ट पे स्टोरियाँ बना देते हो, और आपको लगता है कि उल्टा एंड में जाके कुछ अच्छा लिख दो तो सब भी पॉजिटिव हो जाएगा। इट इज़ अ कंफ्यूज माइंड, बिकॉज अंदर से वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ओएल क्यू दिखाना है, और अंदर से कॉन्शियस डेवलपमेंट नहीं है। सो अंदर एक कन्फ्यूजन है, अंदर से मैं भेड़ हूँ, बाहर से अंदर से भेड़िया हूँ, बाहर से भेड़, अंदर रावण बाहर राम दिखाना चाहता हूँ, गुफा वाले बाबा कुछ और स्टेज वाले बाबा कुछ। सो इनएडिक्वेट कॉन्शियस डेवलपमेंट से भी आपको एक रोल कंफ्यूजन आता है कि सही गलत का पता नहीं चलता, एंड देन ऑल दोस थिंग्स गेट रिफ्लेक्टेड, है ना। लिमिटेड थिंकिंग, बड़े नैरो थिंकिंग, बी पॉजिटिव। एसएसबी को इतना नैरो समझा आपने कि आपको सर्वदृष्टि में फंस गए हो, क्योंकि आपने एसएसबी को समझा ही नहीं है, तो आपका इमेजिनेशन भी नहीं हो रहा, आपका एक लिमिटेड थिंकिंग हो रहा है। तो उस लिमिटेड थिंकिंग में मतलब मलमूत्र में फंस गए हो, तो नेचुरली आपकी सोच मलमूत्र तक रह जाएगी ना। तो आपको अपनी सोच को उठाना पड़ेगा, सर्वदृष्टि से गरुड़ दृष्टि। एंड सेकेंडली, हमारे जैसे लोग जो अपने आप को हम गॉड ऑफ एसएसबी बोलते हैं, लेकिन उल्टा पुल्टा करा देते हैं, तो गॉड ही आपकी बजा देता है ना। हम बोलते हैं अपने आप को गॉड ऑफ एसएसबी, और साथ में हम ये भी बोलते हैं कोर क्वालिटी छुपा दो, तो हमारी भी कुछ गलतियाँ। तो सवाल ये है कि क्या आप लोगों के साथ भी ये हो रहा है? अगर हो रहा है तो अच्छी बात यह है कि एसएसबी का जो कंफ्यूजन है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी, दिस कैन बी करेक्टेड बाय इंप्रूविंग क्लैरिटी। सो दैट करेक्शन इज पॉसिबल। और अगर आपको वो करेक्शन हो जाता है तो नेचुरली आपका ये कंफ्यूज माइंड में जब क्लैरिटी आ जाएगा, और इस क्लैरिटी के साथ जब आप लिखोगे, तो नेचुरली जब आपके मन में क्लैरिटी होगा तो राइटिंग में क्लैरिटी होगा, और ये कटिंग सब क्या हो जाएगा, अवॉइड कर सकते हो। सो कटिंग जो करना है वो सॉफ्टवेयर कटिंग करो। वो क्या करो, सॉफ्टवेयर में कटिंग, मतलब आपके सोच में। ये हार्डवेयर कटिंग साइक को दिख जाएगा। इफ यू अंडरस्टूड, तो प्लीज टेल मी व्हाट इज सॉफ्टवेयर कटिंग एंड व्हाट इज हार्डवेयर कटिंग। सॉफ्टवेयर कटिंग इज इंटरनल टू यू, हार्डवेयर इज ऑन द पेपर। तो जब आप एसएमएल में आओगे, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप में, तो ऑल कटिंग्स कैन बी डन इंटरनल, बिकॉज वी विल पुट यू थ्रू दैट प्रोसेस, जहाँ पे आपका इवैल्यूएशन इतना तगड़ा हो जाएगा कि जो कटिंग करना वो अंदर ही कट हो जाएगा, पेन से आएगा ही नहीं। सो प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट हैव यू अंडरस्टूड बाय सॉफ्टवेयर कटिंग एंड हार्डवेयर कटिंग। दिस व्हाट यू सी इन द डॉक्यूमेंट इज ए हार्डवेयर कटिंग। मैं बोल रहा हूँ क्लैरिटी बढ़ा दो, सॉफ्टवेयर कटिंग कर लो, पता भी नहीं चलेगा। सो मुझे बताना क्या है, तो जब आप अपने क्लैरिटी को बढ़ा के एसएसबी में जाओगे विथ योर इम्प्रूव परसेप्शन, व्हेन एसएसबी आपको जो भी कराएगा, दिस क्लैरिटी ऑफ परसेप्शन विल हेल्प यू टू ऑब्जर्व situation, things, people and event as it is with no distortions. The clarity of perception makes reality look as it is with no distortion, be it TAT, WAT, SRT। और उस तरह के एक क्लियर माइंड को जब आप साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटी और इंटरव्यू दोगे, नेचुरली मानसा में क्लैरिटी है, और वो मानसा की क्लैरिटी जो है एक्सटर्नल क्लैरिटी, मानसा वाचा कर्मना बन के आ जाएगा। मानसा इन राइटिंग, वाचा इन स्पीकिंग एंड कर्मना इन एक्शन। सो कोई भी इशू ही नहीं है। सो आपको अगर इसके बारे में फीडबैक चाहिए, यू कैन स्पीक टू अनु चौधरी बेरेट से, उनका नंबर यहाँ दिया हुआ है, इज करंटली इन दी एसएमएल बैच। आप इनसे पूछो कि कैसे क्लैरिटी आ रहा है।
जब क्लैरिटी आएगा तो वो नेचुरली वो गंगोत्री साफ हो जाएगी, तो उससे बहने वाली ये गंगा की 3 धारें ये भी अपने आप क्लियर हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, गंगोत्री को साफ नहीं कर रहे, लेकिन गंगा को ठीक करना चाह रहे हैं। नो, गंगोत्री को ठीक करना पड़ेगा। दैट इज वेयर योर परसेप्शन इज देयर। नेक्स्ट, अगर आप सर्विस एंट्री हो तो आप सिद्धन गौड़ा से बात कर सकते हो। बेलागांव कर्नाटका के हैं। यू कैन स्पीक टू हिम एंड टेक ए फीडबैक। ही इज ऑल्सो, ही जस्ट फिनिश विथ हिज SML एंड AFOSB कॉम्पोजिट 4-week बैच। तो ये पहले भी SSB गए थे, पूछो इतना। अभी वो बोलता सर बहुत लेट हो गया, अगर मुझे ये पहले होता और मैं थोड़ा सा और पहले आ जाता तो मैं शायद और बेहतर कर सकता था। बहुत हाई एनर्जी बंदा है, दिशा नहीं है। हमें अपने दिशा और दशा दोनों को ठीक करना है। सो देर आर सो मेनी बॉयज एंड गर्ल्स हु आर केपेबल बट हु नीड्स डायरेक्शन, ऐसे ही लगे हुए हैं। सो जब गंगोत्री को साफ करोगे, उससे निकलने वाली गंगा अपने आप साफ हो जाएगी। सो आई रिक्वेस्ट टू स्पीक टू दीज पीपल। एंड अगर आपको भी कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी की तरफ मूव करना है, SSB के नाम से TAT ठीक करने के बजाय खुद को ठीक करना है, यू मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द 2 weeks ऑफ SML एंड 2 weeks ऑफ AFOSB बैच। मैंने यहाँ पे डेट चेंज नहीं किया। अगला बैच जो है 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 4 दिसंबर से 2 weeks का जो बैच होगा वो 4 दिसंबर से 16 जनवरी तक होगा। 16th एंड जो 4 weeks का है वो होगा 4 जनवरी से लेके, सॉरी दिसंबर लिख दिया, 4 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक। सो दैट करेक्शन आई हैव नॉट मेड, मेरे से छूट गया। सो 4 दिसंबर से 16 जनवरी तक नेक्स्ट 2 weeks का बैच है। एंड 4 weeks का बैच इज फ्रॉम 4 दिसंबर टू 4 जनवरी टू 30 जनवरी। 2 weeks का SML एंड 2 weeks का AFOSB। आप जो 4 weeks में लोगे तो पहले 2 weeks का SML होगा, उसके बाद 2 weeks का AFOSB क्लास है। और अगर 2 weeks का ऑप्शन लोगे तो साथ साथ में 2 weeks में SML भी होगा, 2 weeks में AFOSB भी क्लास होगा। टाइम हो तो विल सजेस्ट टू गो फॉर 4 weeks ऑफ कॉम्पोजिट बैच, एंड टाइम नहीं हो तो कैन गो फॉर 2 weeks ऑफ कॉम्पोजिट बैच। एंड ये जो बैच है वो ऑनलाइन है और जूम मीटिंग के ऊपर होगा, ऑफलाइन अभी शुरू नहीं किया है। एंड SML का क्लासेस जो है वो 6:30 AM टू 8:30 AM सुबह होगा। एंड ये ख़त्म होने के बाद SSB का जो क्लास है 9:30 से 11:30 AM तक होगा। 500% क्लैरिटी का वादा, 500%। अगर विश्वास ना हो तो पीछे जो 2 नाम दिए अनु चौधरी एंड सिद्धन गौड़ा, उनसे बात कर लेना। और भी नंबर चाहिए तो और भी दे दूंगा। टू रजिस्टर यू टू व्हाट्सअप मी एट 8275577650। एंड अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना, और इस वीडियो के ऊपर जरूर फीडबैक लिखना, अपना कमेंट, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आप लोग शेयर करो, बिकॉज अगर आप शेयर नहीं करोगे तो ये लोगों के पास पहुंचेगा नहीं। मैं कोई पेड मार्केटिंग तो कर नहीं रहा हूँ। सो आप लोगों ने ही मुझे मदद करना। सो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट and do post your comment, because that inspire me to make more videos. Thank you, and I hope these videos are helping you. And Arun Rao, I will request you to give me a feedback कि इससे क्या समझ में आया, and all others also to kindly do. Thank you and may God bless you. Thank you very much.